چلیے یہ تو ایران امریکہ کے حوالے سے بات تھی. اب بات کرتے ہیں جموں کشمیر کی. جموں کشمیر میں بھی سیکیورٹی کو سخت کر دیا گیا ہے کیونکہ سامہ کے سرحدی علاقے سرلا گاؤں میں ایک مشتبہ پاکستانی غبارہ برآمد ہوا ہے. مقامی لوگوں نے فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی اور پولیس نے موقع پر پہنچ کر غبارے کو اپنی تحویل میں لے کر تحقیقات شروع کر دی ہے. حکام کے مطابق حالیہ دنوں میں سرحدی علاقوں میں مشتبہ نقل و حرکت کے پیش نظر سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے اور تلاشی مہم بھی بڑے پیمانے پر جاری ہے. سانبا ضلع کے سمب بلاک سے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے. آپ کو بتاتے چلے کہ سمب بلاک کے سرلا گاؤں میں ایک پی آئی اے مارکڈ ایئر بیلون یعنی سندگدھ پاکستانی غبارہ ریکور ہوا ہے. آپ کو بتا دیں کہ سمب بلاک کے اس علاقے کی بات کریں تو یہاں پر ثانیہ لوگوں نے دیکھا اور اس کے بعد لوگوں نے پولیس کو انفارم کیا, جس کے بعد یہاں گورن پولیس ٹیم کی بات کریں ضلع پولیس سانبا کی تو ٹیم موقع پر پہنچی اور اس پی آئی اے مارکڈ ایئر بیلون کو پولیس نے اپنی کسٹڈی میں لیا اور جانچ شروع کر دی ہے. میں آپ کو بتا دوں یہ ہرے وائٹ رنگ کا یہ جو پی آئی اے مارکڈ ایئر بیلون یہ سندگدھ غبارہ جس کے اوپر اردو کے کچھ ورڈز لکھے ہیں اسی کے ساتھ پی آئی اے بھی لکھا ہے تو اس میں صاف طور پر یہ ظاہر ہوا ہے کہ یہ سیما پار سے جو بیلون ہے یہ ہماری بھارتی ٹیریٹری میں آیا ہے اور ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے. اس سے پہلے بھی پچھلے 3 مہینوں سے لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ ضلع سانبا کے الگ الگ علاقوں سے اس طرح سے سندگدھ پاکستانی غبارے جو وہ ریکور ہو رہے ہیں جسے ہم لائٹلی نہیں لے سکتے. سرکشا کے لحاظ سے اگر بات کریں تو سرکشا جو وہ لگاتار چاک چوبند ہے. اس سے پہلے جو انپوٹ جو وہ لگاتار ملتے نظر آئے جس کے بعد سرکشا کو لگاتار انترراشٹریہ سیما سے لے کر ہائی وے اور ہائی وے سے اوپری پہاڑی علاقوں تک جو وہ چاک چوبند کیا گیا ہے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو سندگدھ پی آئی اے مارکڈ ایئر بیلونز الگ الگ علاقوں سے ریکور ہو رہے ہیں جو ہوا کے رخ کے کارن کہیں بھی آ کر گر سکتے ہیں لیکن اسے ہم لائٹلی نہیں لے سکتے, اسے ہم درکنار نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی دشمن ملک پاکستان کی بات کریں تو کوئی ریکی کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا کوئی سگنل بھیجنے کی اپنے ہینڈلرز کو یا او جی ڈبلیوز کو جو وہ کوشش کر رہا ہے جسے ہم بالکل بھی لائٹلی نہیں لے سکتے, جس کے چلتے جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج جموں میں نشہ مکت پد یاترا کے عنوان سے ایک بڑی انسداد منشیات مہم کا آغاز کیا ہے جو یونین ٹیریٹری میں منشیات کے بڑھتے ہوئے رجحان کے خلاف 100 روزہ مہم کا حصہ ہے. یہ تقریب آج صبح 11 بجے منعقد ہوئی جہاں معاشرے کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد نے اس مہم میں حصہ لیا. اس مہم کا مقصد خاص طور پر نوجوانوں میں منشیات کے بڑھتے ہوئے استعمال کے خلاف عوامی بیداری پیدا کرنا ہے جس کے تحت آگاہی پروگرامز, عوامی مہمات اور کمیونٹی کی شمولیت کو فروغ دیا جائے گا. حکام کے مطابق یہ اقدام صرف علامت ہی نہیں بلکہ اس میں زمینی سطح پر اقدامات, مختلف محکموں کے درمیان ہم آہنگی اور بحالی اور نفاذ کے ذریعے ایک منشیات سے پاک معاشرے کی تشکیل کو یقینی بنایا جائے گا. جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر نے منشیات کے خلاف سخت موقف اپناتے ہوئے عزم ظاہر کیا کہ یو ٹی کو منشیات کے ناسور سے مکمل طور پر پاک کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ منشیات کی سمگلنگ میں ملوث عناصر کے خلاف فیصلہ کن اور بلا امتیاز کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور معاشرے کو تباہ کرنے والے افراد کو قانون کی مکمل اور سخت گرفت کا سامنا کرنا پڑے گا. اپنے سے ہونی چاہیے کہ سماج کو نقصان پہنچانے والوں کو کسی بھی صورت میں بخشا نہیں جائے گا. میں پولیس کے جوانوں, سیما میں لگے ہوئے سبھی بہادر سرکشا بلوں تथा اینٹی نارکوٹکس ٹاسک فورس کے سبھی ویروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا پڑوسی ایک ષڑینتر کے تحت ڈرگ اسمگلنگ کے ذریعے آتنک کی بھی فہیم کر رہا ہے اور ہمارے بھوشیہ کو کھوکھلا بنانے کی کوشش کر رہا ہے. سیما پار سے اسمگلنگ کر کے لائے گئے ڈرگس جموں کشمیر کی شانتی اور ہمارے نوجوانوں کے جیون کے لیے سب سے بڑے خطرے بن کر ابھرے. شمالی کشمیر کپوارہ کے سرکاری اسکولوں میں کام کر رہے مڈ ڈے میل ملازمین نے آج ڈپٹی کمشنر کپواڑہ کے دفتر کے سامنے اپنے مطالبات کے حق میں پرامن احتجاج کیا. مظاہرین نے اپنے اہم مطالبات میں مستقل ملازمت کی فراہمی, منیمم ویج ایکٹ کا نفاذ, بقایا تنخواہوں کی فوری ادائیگی اور اسامیوں کی مناسب تشہیر و باقاعدہ ریگولرائزیشن کو شامل کیا. انہوں نے کہا کہ وہ تعلیمی نظام کا ایک اہم حصہ ہیں اور مڈ ڈے میل اسکیم کو کامیابی سے چلانے میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں. اس کے باوجود ان کے مسائل کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے. احتجاج کے دوران مظاہرین نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے اور اپنے مطالبات کے حق میں نعرے بازی بھی کی. انہوں نے واضح کیا کہ ان کا احتجاج مکمل طور پر پرامن ہے اور اس کا مقصد متعلقہ حکام کی توجہ اپنی جائز مطالبات کی جانب مبذول کروانا ہے.
मुजाहिरीन ने खबरदार किया कि अगर उनके मुतालबात को जल्द पूरा नहीं किया गया तो वो अपने एहतजाज को मज़ीद तेज़ करने पर मजबूर होंगे। मिड डे मील कुक मुलाजमीन ने हुकूमत और ज़िले इंतज़ामिया से अपील की कि वो फौरी इक़दाम करे और इन्हें इंसाफ, इज़्ज़त और उनकी खिदमत का मुनासिब मुआवजा फराहम किया जाए। जम्मू एंड कश्मीर संघर्ष समिति के बैनर तले कि हमारे साथ सरासर नाइंसाफी हो रही है। हमने 2025 को भी स्ट्राइक 5-6-7 महीने तक स्ट्राइक किया। हमारे ऊपर मिनिमम वेज एक्ट लागू करो, रूरलाइजेशन पॉलिसी लागू करो। हम क्या सरकार से मांगते थे? हम सरकार से इतना ही मांगते थे कि अगर आपने लेबर को 800 रुपया एक दिन का किया है, हमारे साथ तो 500 रुपये भी, हम 500 रुपये के लायक भी नहीं है क्या? हमारे बच्चे हैं, हम भी गरीब तबकों से हैं। हमको अगर ये हमारी ऑल डिलीवरी जम्मू एंड कश्मीर संघर्ष समिति के बैनर तले हम इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आज हो गए हमें 10 साल हो गए, किसी को 20 साल, किसी को 30 साल हो गए, आज तक 1 रुपया भी नहीं बढ़ा है। काम हमें इतना लेते हैं स्कूलों में कि आप पूछो ही मत। लेकिन अगर ये बोलते हैं, हम सब के पास गए, सीओ साहब के पास गए, डीसी साहब के पास गए, अपने जो हेड टीचर है वो भी सब बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ये गवर्नमेंट करेगा। अगर हम उनकी पॉलिसी है तो ये क्यों बीच में आते हैं? अगर हम काम छोड़ हड़ताल पे तो ये हमारे साथ क्यों जुल्म करते हैं? यू रिक्वेस्ट करा सकीना जी, सरकारन गवर्नमेंटन मोदी साहब यू रिक्वेस्ट करा, तम लगित अगर न तमिस ईसा बलाय लागे कि इम क्या गवर्नमेंटस मट खोल, इम क्या कर ईसा माज बिन तरफ करा मेहरबानी तो मेहरबानी अस 2005 पे वन त्रोन पतिम तनख्वाह सोरे बे कर रुगीला बे मिनिमम वेजस कर एक्ट लागू मेहरबानी तोतान बेम काम छोड़। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेंटर फॉर एक्सलेंस ने श्रीनगर में मीडिया के साथ साइबर क्राइम से मुतल्लिक एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इजलास में ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल जैसे बढ़ते हुए खतरात पर रोशनी डाली गई और आवाम को मुहतात रहने की तरफ आगाह किया गया। और ऐसे टारगेट बनते हैं। इसका असल में जो हमने अभी तक एनालाइज किया है, इसकी असल वजह यह है क्योंकि जो ये डिजिटल अरेस्ट करने वाले फ्रॉडस्टर्स होते हैं, इनको एल्डरली आदमी को डराना धमकाना बड़ा, जो जवान है वो इजी लेगा, कोई भी धमकी हो कुछ हो वो देखा जाएगा, लेकिन जो एल्डरली होता है वो बड़ा सीक्योर रहना चाहता है। जब उसको बोला जाता है कि आप किसी बड़े फ्रॉड में इन्वॉल्व हो गए हैं, आपका फ़ोन नंबर इस्तेमाल हुआ है किसी ऐसी एक ऐसे एक्ट में जिसमें टेररिज्म के रिलेटेड लिंक्स हैं, जिसमें हवाला मनी का ट्रांसफ़र हुआ है, जो कोई बहुत ही हाई प्रोफाइल जैसे पहलगाम इंसिडेंट हुआ था उस इंसिडेंट में हुआ है। तो अगर ऐसा कभी होता है तो मेरी आम लोगों से ये गुजारिश है आपके माध्यम से कि कभी इन फ्रॉडस्टर्स के जासे में मत आ जाओ। डिजिटल अरेस्ट वाला कोई चीज़ नहीं है। रुकन असम्बली बारामूला जावेद हसन बेग ने प्रोजेक्ट बीकन को डेलिना ता खानपुरा सड़क की खराब हालत पर कानूनी नोटिस जारी कर दिया। उन्होंने सड़क को मौत का जाल करार देते हुए इल्ज़ाम लगाया कि मरम्मती कामों में ताख़िर और गफलत से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। नोटिस में फौरी इक़दाम न होने की सूरत में कानूनी कार्रवाई की वार्निंग भी दी गई। पार्किंग स्पेसेस यहाँ बनेंगे, एक ही स्टोन में बनेगा और 2 पार बनेंगे और इन्हीं दौरान में बनेंगे, इन्हीं 3। अब मैं उनको कई बातें मैं इसलिए नहीं जिक्र करना चाहता हूँ कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि बारामूला के लोग कितना नुकसान पहुँचा रहे हैं। सिर्फ इस वजह से ये डिले करने की कोशिश की जा रही है ताकि इसका क्रेडिट किसी को ना जाए, जबकि मैं खुद ये कह चुका हूँ कि बारामूला की सियासत को जो भी शख्स वोट की नज़र से देखेगा और इस नज़र से देखेगा कि यहाँ मैं ये करूँ ताकि मेरा कोई सियासी फ़ायदा हो, अल्लाह उसको कल ना दिखाए। मेरी कोशिश ये है कि बारामूला जो है इसको हम तरक्की के रास्ते पे गामज़न करें और फिर जो फल होता है ये अल्लाह ताला के हाथ में है। ये किस देना है जी, मेरी अकाउंटेबिलिटी है 3-4 साल के बाद, मेरा पहला फाइनेंशियल ईयर हो गया तो ये 4 साल 5 साल के बाद मेरी अकाउंटेबिलिटी है अल्लाह ताला की। पूरी तफसील बताऊंगा। मैं इसलिए बात नहीं करता हूँ
कि मेरे पीछे बड़े लोग पड़े हैं जिनकी रुकन असम्बली हबा कदल शिमा फिरदौस ने शाल कदल में आग से मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात करके उनके साथ इज़हार हमदर्दी की और मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। उन्होंने इंतज़ामिया से नुकसानात का फौरी जायज़ा मुतासरीन को जल्द मुआवजा फराहम करने की अपील भी की। बादजा उन्होंने चाणपोरा में मुतासरा ख़ानदानों से भी मुलाकात की और मदद का यकीन दिलाया। शिमा फिरदौस ने सईद ताज बीबी खातून पार्क और ज़ैनब पार्क का दौरा करके जारी कामों का जायज़ा लिया और जल्द तकमील की हिदायत दी। वस्त कश्मीर बडगाम में महकमा समाजी बहबूद और निजी तंजीम चार साज के इश्तराक से मनशियात के खिलाफ बेदारी प्रोग्राम मुनक़द किया गया। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर और जम्मू कश्मीर पुलिस के SSP समेत कई अफसरान ने शिरकत की। हुकाम ने नौजवानों को मनशियात से दूर रहने की तलकीन करते हुए खबरदार किया कि मनशियात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वालिदैन से भी अपील की गई कि वो अपने बच्चों पर नज़र रखें, जबकि बडगाम को नशा मुक्त ज़िला बनाने के अज़म का इआदा किया गया। जैसा आप सब जानते हैं, आज नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत पूरे जम्मू कश्मीर में 100 दिवस का एक इंटेंसिफाइड कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसका नेतृत्व ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब खुद कर रहे हैं। सभी जब पूरे इंटेंसिव कैंपेन का मकसद ही यही है कि सब मिलके एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट, एवरीबडी और कम्युनिटीज, सिविल सोसाइटी सब मिलके इस पूरे जो ये नशे का मुसीबत है, नशे की लत है, इसको हम जड़ से उखाड़ सके। तो पूरा इसका एक कम्प्रहेंसिव 100 दिन का प्रोग्राम बना हुआ है, जिसका एक मेजर एस्पेक्ट इसका अवेयरनेस और इंफॉर्मेशन कैंपेन है, जिसमें देखिए, फर्स्ट कोऑपरेशन हैज़ टू कम फ्रॉम द फैमिली इटसेल्फ। ये इंग्लिश में एक कहावत है, इट टेक्स अ सोसाइटी टू राइज अ चाइल्ड। सो मेरा भी कहना ये है, जो भी टेल साइंस है ड्रग एडिक्शन का, इसका फर्स्ट साइंस पहले पेरेंट्स को देखने को मिलता है, टीचर्स को देखने को मिलता है, मोहल्ले वाले को देखने को मिलता है। शुमाली कश्मीर ज़िला कुपवाड़ा के वेलगाम इलाके में आज एक तालीमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें माहिरीन तालीम, उसातिज़ा, वालिदैन और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में जोनल एजुकेशन ऑफिसर मंजूर अहमद, प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल वेलगाम, टीचर्स फोरम के ज़िला सदर साहिल बशीर, रहबर तालीम के ज़िला सदर शेख परवेज समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। मुकर्रीरीन ने अपने खिताब में कहा कि बच्चे कौम का मुस्तकबिल है और मौजूदा हालात में उनकी बेहतर तालीम और तरबियत हम सब की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बच्चों को गलत रास्तों से बचाने के लिए वालिदैन और उस्ताज़ा को मिलकर किरदार अदा करना होगा। इस मौका पर मास्टर गुलाम महमूद को इलाके में तालीमी खिदमात के एतराफ़ में एजाज़ से नवाजा गया, जबकि आखिर में मास्टर मुश्ताक अहमद पीर ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए इस अज़म का इजहार किया कि बच्चों की तालीम पर कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। मुमकिन से तुम कर मो हुशार मूजूब प्रोग्राम एहतमाम करना मकसद जीपी फंड्स चकता उठान आज जो एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस बॉयज़ मिडिल स्कूल विलगाम में मुनक़द की गई। Vilgam is said to be the powers of education, and this school, Boys Middle School Vilgam, is the heart of the zone Vilgam, and this is, I can say, the model school of zone Vilgam. एंड इस स्कूल में यहाँ के टीचर्स ने, यहाँ के HOI ने जिस तरीके से आज ये कॉन्फ्रेंस मुनक़द की, इसमें सिविल सोसाइटी के मेंबर्स कौन थे, जिन लोगों ने अल्लाह के राम हाल को बनाने में अपना कलीदी रोल निभाया। दे ऑल आर बाय दिस वे और दैट वे रिलेटेड टू द एजुकेशन डिपार्टमेंट। वो सब टीचर्स रहे थे, उन्होंने आज सबों के साथ यहाँ पे एजुकेशन डिस्कस हुआ है, और इसके साथ साथ यहाँ जो नशा मुक्त अभियान है वो भी यहाँ पे चला। ये मल्टी डायमेंशनल प्रोग्राम बॉयज़ मिडिल स्कूल। उस्ताद एक सड़क के मानंद होता है, यह अपने मुसाफिरों को अपने डेस्टिनेशन तक लेके जाता है, लेकिन खुद तो वहीं रहता है। जितने भी यहाँ की सिविल सोसाइटी हैं, समाजी कारकुन हैं, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से जो आले अहदेदार हैं, वो इस फंक्शन में मौजूद रहे। आपको पता ही है कि जब भी उस्ताद को कहीं भी कमी उछालनी होती है तो सारे के सारे इकट्ठे होकर कि इसकी खिमियाँ उछालते हैं, और जब एक उस्ताद की हौसला अफजाई करनी होती है तो कहीं पे हम कोई नज़र ही नहीं आता है। फंक्शन हुई है, यहाँ पे हर एक समाजी कारकुन मौजूद, और हमने उनसे यही कहा है कि टीचर्स आर रियल कस्टोडियन ऑफ ब्राइट फ्यूचर ऑफ आवर स्टूडेंट्स, एंड वी आर कमिटेड टू सेव टू ब्राइट फ्यूचर ऑफ आवर स्टूडेंट्स। अगर ज़िले की बात करें
कि हर एक जोन में उस्तादों की कमी महसूस होती है। आपने पढ़ा भी होगा कि 1400 हमारे ज़िले में उस्ताद की जो असामियाँ हैं वो खाली है। ज़िला बारामूला की कुंजर में आज एक अहम बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसका उन्वान एक खुशगवार मुँह एक खुशगवार जिस्म था। ये प्रोग्राम डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस कश्मीर के इश्तराक से PHC मलगाम कुंजर में मुनक़द हुआ। इस मौका पर डॉक्टर अंजुम डेंटल ने सेहत दहन की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि मुँह की सफाई न सिर्फ दांतों बल्कि मजमूई जिस्मानी सेहत के लिए भी बेहद ज़रूरी है। उन्हें डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और स्कूली बच्चों की दांतों की सफाई और एहतियाती तदाबीर के बारे में आगाह किया। प्रोग्राम के दौरान डॉक्टर अंजुम की जानिब से डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और स्कूली बच्चों में उनकी बेहतरीन खिदमत और कारकर्दगी के एतराफ़ में एजाज़ात भी तकसीम किए गए। इस बेदारी प्रोग्राम में डेंटल स्पेशलिस्ट और डेंटल टेक्नीशियन शबीर अहमद के अलावा CMO बारामूला, BMO कुंजर ने भी शिरकत की। मेरा नाम तैयबा बेदार है और आज यहाँ पे इवेंट हुआ है ऑरल हेल्थ के रिलेटेड ऑर्गेनाइज़ किया। ये बहुत ज़्यादा अच्छा इवेंट है। मैं हायर सेकेंडरी कुंजर से हूँ और हमें हमेशा ये मौके मिलते हैं, हमें हमेशा ये चांसेस मिलते हैं हम खुद को रिप्रेजेंट करें और हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट करें। मैं यही कहना चाहती हूँ हमें अपने दांतों को साफ़ रखना चाहिए क्योंकि लाइक अ स्माइल इज़ आवर प्राइड, ठीक है। एंड ऑरल हेल्थ हमें हमेशा मेंटेन करनी चाहिए, ये हमारा हाइजीन होता है एंड ऑरल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हनफिया मॉडल हाई स्कूल चंदीलूरा से आई हूँ और जो यहाँ पे मुलगाम में हम ये ऑरल हेल्थ डे मना रहे हैं, ये सब के लिए एक मैसेज है कि हमें अपने टीथ से मतलब हमारे अपने टीथ जो है साफ़ रखनी चाहिए, हमें ब्रश डेली बेसिस पे ब्रश करना चाहिए। अगर हमारी टीथ साफ़ नहीं होगा जो हमारी जो डाइजेशन है वो भी ख़राब हो जाएगी, हमारे टीथ वो भी ख़राब हो जाएंगे। इसीलिए हमें प्रॉपर मतलब अपना हेल्थ केयर करना चाहिए। प्लीज़ डेली बेसिस पे ब्रश किया करो जिससे हमारा हेल्थ जो है ठीक हो जाए। स्मोकिंग अवॉइड करो, स्मोकिंग से भी बहुत सारे हमारे जो दांत हैं वो ख़राब हो जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ आमना बशीर, आई एम फ्रॉम GHS चंदीलूरा। आज जो हम दिन मना रहे हैं ये बहुत ही ख़ास दिन है क्योंकि हैप्पी टीथ इज़ अ हैप्पी लाइफ। वी शुड कीप आवर टीथ क्लीन एंड माउथ, क्योंकि अगर हम अपना माउथ क्लीन रखेंगे ये डायरेक्टली रिलेटेड है हमारी बॉडी के साथ। तो हमें चाहिए कि हम अच्छा, क्योंकि हम फ्यूचर है अपनी कंट्री का, अपनी सोसाइटी का, अगर हम खुद का ख्याल रखेंगे तभी हम कुछ कर सकते हैं सोसाइटी के लिए। ईयर से डॉक्टर अंजुम यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ कर रहा है सर, तो इसे मतलब हमारे आप देखिए सर बच्चों ने भी वो पार्टिसिपेट किया है, किस तरीके से बच्चों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, अपने अपने टैलेंट्स शो किए सर। उस हिसाब से एक मैसेज भी प्रोवाइड किए है कि मतलब हमारे मुँह में और डेंटल में कितनी प्रॉब्लम हो सकती है इन फ्यूचर में सर। तो काइंडली आप ये प्रोग्राम जो आगे बढ़ाए इसके सपोर्ट कीजिए सर, ताकि हम इंशाल्लाह रहमान अपनी सेहत को ठीक रख सकते हैं सर। मैं डॉक्टर अंजुम बशीर, मैं डेंटल सर्जन हूँ, आई एम MDSC मुलगाम का इंचार्ज हूँ। और ये एक मंथ जो हम मनाते हैं ये होता है वर्ल्ड ऑरल हेल्थ। पहले डे होता था 20 मार्च को, बट इतनी इसकी ज़रूरत पड़ी है, नाउ वी आर सेलिब्रेटिंग इट फॉर 1 मंथ। मैं पिछले 4 साल से यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहा हूँ। हर साल मैं लोगों को इंस्ट्रक्शंस देता हूँ कि किस तरह से आप ऑरल हाइजीन कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से इस बार मैंने नारबल टंगमर्ग सड़क पर कई साल कबल नस्ब की गई स्ट्रीट लाइट्स अब नाकारा हो चुकी है, जिसके बाद शाम ढलते ही पूरी सड़क अंधेरे की लपेट में आ जाती है। इस सूरत हाल ने मुसाफिरों, पैदल चलने वालों और ड्राइवरों के लिए शदीद मुश्किलात पैदा कर दी है और वो खुद को गैर महफूज महसूस करते हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि सड़क के मुतअद्दिद मकामात पर रोशनी न होने की वजह से हादसात के खदशात में इजाफा हो गया है, जबकि रात के वक्त सफ़र करना इंतहाई ख़तरनाक बन चुका है। अवाम ने मुतल्लिका महकमे से मुतालबा किया है कि सड़क पर स्ट्रीट लाइट्स की फौरी मरम्मत और बहाली को यकीनी बनाया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी तजवीज़ पेश किया है कि मौजूदा निज़ाम को जदीद सोलर स्ट्रीट लाइट्स में तब्दील किया जाए ताकि बिजली के अखराजात में कमी आए और सड़क पर मुस्तकिल और मौसर रोशनी का निज़ाम कायम हो सके। तो सब बोल रहे हैं कि ग्रेटर गुलमर्ग के नारबल से जब आएंगे तब आपको पता चलेगा ग्रेटर गुलमर्ग किसको बोलते हैं। स्ट्रीट लाइट जो लगाई है यहाँ पर हाईवे में, आप देखिए पिछली बार G20 हुआ, उसमें बहुत सारी डेवलपमेंट हुई, लेकिन इसकी तरफ किसी भी सरकारी ऑफिसर ने वो पता नहीं कितने सालों से बंद पड़ी हुए हैं, कोई तवज्जो नहीं दी। ऊपर से बोलते हैं कि हमने बहुत डेवलपमेंट किया, टूरिज़्म को बढ़ावा दिया। टूरिज़्म बढ़ेगा, अगर रात में वहाँ से टूरिस्ट निकल के आता है तो रास्ते में उसको कहीं रुकना पड़ेगा। जब लाइटें नहीं चाहिए रोडों पे तो वो अंधेरे में कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे। ऊपर से नारबल से लेके गुलमर्ग तक ये बिज़नेस हब बना हुआ है। हर जगह लोगों ने अपने छोटे या बड़े बिज़नेस यूनिट्स खड़ा किए हैं, लेकिन इन स्ट्रीट लाइट्स को देख के ऐसा लगता है कि शाम के टाइम में जो ही अंधेरा हो जाता है तो कोई नज़र नहीं आता। और जितने भी शॉप्स होते हैं, चाहे मेडिकल शॉप हो,
चाहे आपका जो ड्राई फ्रूट वाले हैं, चाहे शाल वाले हैं, चाहे छोटे छोटे ढाबे वाले हैं। इस वक्त हम नारबल टंगमरग रोड, जिसे एनटीआर के नाम से भी जाना जाता है, अगरचे यहाँ पर हर दिन जो है हज़ारों की तादाद में सयाह गुलमर्ग का रुख कर रहे हैं, ताहम शाम देर गए इस रास्ते पे जो स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई है, यहाँ पर पूरी तरह से गुलमर्ग से लेकर नारबल तक अंधेरा छा जाता है। यहाँ पर मकामी लोगों ने सरकार से गुजारिश की है कि लाइट्स को तब्दील करके सोलर स्ट्रीट लाइट्स पे अगर लगाया जाएगा तो यहाँ पर जो है रौनक लौट आएगी, क्योंकि अगर हम नारबल से लेकर गुलमर्ग तक काफ़ी सारे बिजनेस यूनिट खड़े किए गए, चाहे वो शाल वाला हो, चाहे वो ड्राई फ्रूट वाला हो, या कोई और कुछ बिजनेस शॉप जो यहाँ पर रखे गए हैं, उनका कारोबार जो है शाम देर गई ही बंद हो जाता है, क्योंकि इसमें लाइट्स नहीं है। अब यहाँ के लोगों ने ये गुहार सरकार से लगाई कि जल्द से जल्द इन स्ट्रीट लाइट्स की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि यहाँ पर सयाहों के साथ साथ जो है आम लोगों को चलने फिरने में राहत महसूस हो। इशफाक डार, गुलिस्तान न्यूज़, गुलमर्ग। मुगल गार्डन अछाबल अनंतनाग में मौजूद फाउंटेन मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुके हैं। इसके साथ ही बाग का मरकजी गेट भी खस्ता हालत में है। अब मुकामी लोगों और सयाहों ने मुतल्लिका महकमे से अपील की है कि वो इस तरफ जल्द अज जल्द तवज्जो दें, ताकि आने वाले मकामी और गैर मकामी सयाहों और सैलानियों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। याद रहे कि मौसम के खुशगवार होती ही बाग में सयाहों का रश आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में सयाह अछबल आकर यहाँ के पुरलुत्फ नज़ारों को देखकर काफ़ी खुश होंगे। सयाहों का कहना है कि मज़कूरा बाग की तरफ और तवज्जो देने की ज़रूरत है, ताकि सयाह ज़्यादा तादाद में बाग का रुख कर सके। मेरा फर्स्ट विजिट है, मैं दिल्ली से आया हूँ जी। प्लान तो मेरा सिंधन टॉप जाने का था, बट वहाँ जाके पता चला कि बंद है, और मैंने सोचा इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं जी। नाउ आई एम गोइंग टू पहलगाम, पर थोड़ा सा फाउंटेन थोड़ा रिपेयर हो जाए या फिर और चल पड़े तो इसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। जी 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 सर, इट इज़ योर फर्स्ट विजिट इन मुगल गार्डन अछाबल? मुगल गार्डन फर्स्ट विजिट। जी जी, तो कैसा लगा? टूरिज्म डिपार्टमेंट से यही है कि देखो बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, तो वो यही सब चीज़ें देखने आते हैं कि वहाँ से अपना दिल्ली, मुंबई, भोपाल, इंदौर से छोड़ के इंसान यहाँ इसीलिए आ रहा है कि ये सब चीज़ें नेचर की खूबसूरती देख सके। तो ये जितना ज़्यादा वर्किंग रहेगा, जैसे कई वर्किंग अभी नहीं है, तो और ज़्यादा मतलब, क्योंकि लोग टिकट तो ले ही रहे हैं, अगर फ्री होता तो ये वर्किंग नहीं भी होता, पर लेकिन अभी जब गवर्नमेंट को पैसा इसका जा रहा है तो आने के लिए बोलना चाहती हूँ, सब आए एंजॉय करें। इट्स गुड टू बी हियर, अच्छा है, मतलब यहाँ से वापस जाने का तो मन नहीं करता, बट सबको आना चाहिए, विजिट तो करना चाहिए। आप क्या काम करते हैं खुद? मैं तो जॉब करती हूँ। जॉब, क्या जॉब करती हो? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। माशाअल्लाह। अगर हम अपने वादी कश्मीर की बात करें, अल्लाह ताला ने इसको हर लिहाज से मालामाल किया है। यहाँ के कोसार, यहाँ के आबशार और यहाँ के पहाड़ देखने के लायक है। वहीं आज हम उस सयाहती मुकाम की बात करें, कस्बे अछाबल, यानी कि अगर अछाबल मुगल गार्डन की हम बात करें, बिल्कुल यहाँ पर भी आज मुगल गार्डन को खूब सजाया गया है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ यहाँ पे अभी भी करने को बाकी है। तो मेरी मुराद है, जो यहाँ पे आप ये फाउंटेन देख रहे हैं, फवारे, ये नॉन फंक्शनल होने के नाते जो बैरूनी सयाह और इसके साथ साथ मुकामी लोग, उनको यहाँ पे मायूसी हाथ लग जाती है, और इनका ये कहना है कि हम मज़कूरा महकमे से मुदबना अपील कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द इन फाउंटेन को काबिल इस्तेमाल बनाया जाए, ताकि बाग की शान रफ्ता फिर से दुबाला हो सके। पीर मुजफ्फर, गुलिस्तान न्यूज़ चैनल, अछाबल, अनंतनाग। ज़िला पूंछ के बफलियाज ब्लॉक में खेलों की जदीद सहूलियात के फुकदान पर तशवीश का इजहार करते हुए साबिक सरपंच ताहिरा तबस्सुम और खालिक मुगल ने वजारत उमूर नौजवान और खेल से मुतालबा किया है कि इलाके में एक जदीद स्पोर्ट्स स्टेडियम की मंजूरी दी जाए और इसकी फौरी तामीर को यकीनी बनाया जाए। उनका कहना है कि बफलियाज के नौजवानों में बेपनाह टैलेंट और खेलों के लिए जज्बा मौजूद है, ताहम मुनासिब इंफ्रास्ट्रक्चर न होने की वजह से वो अपनी सलाहियतों को निखारने से महरूम है। सरपंचों ने कहा कि सहूलियत के फुकदान के बायस खिलाड़ी गैर मौजूद हालात में प्रैक्टिस करने पर मजबूर है, जिससे उनकी कारकर्दगी और तरक्की मुतासर हो रही है। उन्होंने मजीद कहा कि एक जदीद और मुकम्मल सहूलियात से आरास्ता स्टेडियम के क़याम से न सिर्फ खेलों के कल्चर को फ़रोग़ मिलेगा, बल्कि नौजवानों की तवानाई को मस्बत और तामीरी सरगर्मियों की जानिब भी मोड़ा जा सकेगा।
सबसे पहले मेरा सवाल तो स्पोर्ट्स के मिनिस्टर से है कि उन्होंने हमेशा हमारे ब्लॉक बफलियाज जैसे जो भी फार फ्लंग एरियाज़ हैं उनको हमेशा इग्नोर किया है। क्या इन बफलियाज के लोगों का हक नहीं है कि वो भी देश के किसी भी स्पोर्ट्स के किसी भी इसमें इवेंट में पार्टिसिपेट करें या स्पोर्ट्स में अपना नाम बड़ा करें? ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमने पिछले 8 सालों से डिमांड कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स स्टेडियम होना चाहिए, बट अभी तक इसमें कोई हल नहीं निकला है। और हमारी यूथ को जो हमसे तो स्पोर्ट्स है, ये एजुकेशन का एक हिस्सा है और आजकल आप ये बखूबी जानते हैं कि हमारे जो यूथ हैं उनको इन अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत है। और क्योंकि यूथ जो है मैक्सिमम ये ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहा है, ड्रग्स पैडलर जगह जगह पे घूम रहे हैं, लोगों के बच्चों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं। तो जनूबी कश्मीर कुलगाम में डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स के ज़ेर एहतमाम मुनक़दा खून अतिया कैंप में 30 पुलिस एहलकारों ने रज़ाकाराना तौर पर खून अतिया किया। कैंप का इफ्तिताह करते हुए SSP कुलगाम इनायत अली चौधरी ने कहा कि मंशात के खिलाफ जंग सिर्फ पुलिस या सिविल इंतज़ामिया अकेले नहीं जीत सकती, इसके लिए अवामी शराकत और भरपूर तावन नागुज़ेर है। उन्होंने जोर दिया कि माशरे के तमाम तबक़ात की फ़ाल शिरकत से ही ऐसी मुहिमात को कामयाब बनाया जा सकता है। SSP ने मज़ीद कहा कि इंतज़ामिया, पुलिस और आवाम के मुश्तरका इक़दामात के ज़रिए ही ज़िला को मंशात की लानत से पाक किया जा सकता है। उन्होंने ख़ास तौर पर नौजवानों से अपील की कि वो सेहतमंद और मंशात से पाक माशरे की तश्कील के लिए मस्बत सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले ताकि ज़िला कुलगाम को मंशात से पाक किया जाए। भारत अभियान की आज ऑलमोस्ट एक जो मेन फंक्शन हमने दिया जिसके थ्रू ज़्यादा अवेयरनेस हो पाई इस चीज़ की, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है हुई, जिसमें से एक एक्टिविटी यहाँ DPL में ब्लड डोनेशन कैंप भी हुआ। ये भी जो है रिपीटेडली होता रहेगा हर महीने। इसके अलावा पुलिस की कम्युनिटी के साथ अपनी बहुत सारी मीटिंग्स होंगी जिनमें हम ये जो मैंने बातें कही दोबारा दोहराई जाएंगी ताकि एक बेहतरीन तालमेल बन पाए। जो भी गैप है हमारे और कम्युनिटी के बीच में वो कवर अप हो पाए ताकि इस वबा से हम सक्सेसफुली लड़ सकें। फौज की 34 राष्ट्रीय राइफल्स ने शुपियां के बहीबाग में आर्मी HPCL कश्मीर सुपर 50 प्रोग्राम के तहत मेडिकल एंट्री टेस्ट का इनेकाद किया। इस इम्तिहान में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से बड़ी तादाद में तलबा ने शिरकत की। प्रोग्राम का मकसद नौजवानों को मेडिकल शोबे में कामयाबी के लिए रहनुमाई और मौका फराहम करना है। तालिब इल्मों ने ऐसे प्रोग्राम मुनक़द करने पर फ़ौज का शुक्रिया अदा किया। और मैं पुंछ से आई हूँ। एक्चुअली यहाँ पे एक NGO खुला है जिसमें नीडो सुपर 50 और सुपर 30 के बच्चों को पढ़ाया जाता है और यहाँ पे बहुत अच्छी एजुकेशन मिलती है, जो कि यहाँ पे कोटा के टीचर और PW के टीचर्स आते हैं और बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन देते हैं। यहाँ पे उन बच्चों के लिए एक मौका है जो जिनके घर वाले बहुत गरीब हैं, जो उनको पढ़ाई प्रोवाइड नहीं कर पाते, जिनकी वजह से वो पढ़ नहीं पाते हैं, कुछ को फैमिली प्रॉब्लम्स है और उनको एक अच्छी एजुकेशन के लिए यहाँ पे लाया जाता है। यहाँ पे बच्चे का मेरा नाम डॉक्टर सईद मुदाबिर अहमद है। मैं आर्मी HPCL सुपर 50 श्रीनगर से आया हूँ एज ए कोऑर्डिनेटर फॉर दिस एग्जामिनेशंस। हमारा जो कोचिंग है जहाँ पे हम ऑल ओवर द कश्मीर हम 50 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं और उनको फ्री नीट JEE NDA या CUET या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जितने भी होते हैं हमारे, उनके लिए उनकी तैयारी कराते हैं। ये एक ट्राइपार्टाइट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंडियन आर्मी एंड एक NGO है डेट इज़ NIEDO नेशनल, वो टेक केयर करती है और हमारी जो फंडिंग एजेंसी है। फ़ौज की जानिब से GDC पटन में आंखों के मुआयने का कैंप मुनक़द किया गया। कैंप में माहिर डॉक्टरों ने मकामी अफराद और तलबा का मुआयना किया और ज़रूरी इलाज व मशवरे फराहम किए। इस मौके पर लोगों ने मुफ्त तिब्बी सहूलत फराहम करने पर फ़ौज का शुक्रिया अदा किया, जबकि कैंप के ज़रिए आंखों की बीमारियों की निशानदही भी की गई। हमारे कॉलेज GDC पटन में वंस अगेन एक मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज हुआ था बाय द इंडियन आर्मी। सो वी आर रियली थैंकफुल टू देम क्योंकि इन्होंने ये बार ये इनिशिएटिव्स करते हैं तो फैसिलिटेट द पीपल जो यहाँ के लोकल एरियाज़ के लोग हैं या फिर फार फ्लंग एरियाज़ के भी लोग हैं, वो यहाँ पे आए, दे टोल्ड देम अबाउट द प्रॉब्लम्स, जो भी हेल्थ इश्यूज उनके थे इन्होंने शेयर किए। और जो यहाँ की टीम थी दे वर टॉप नॉच टीम एक्चुअली। तो जैसे कि
मैं कह सकती हूँ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या फिर दूसरे जो मेडिकल टीम आई थी, तो वो बहुत अच्छी थी। उनका बिहेवियर या उनको कह सकते हैं, या फिर जो इनका ट्रीटमेंट का तरीका था वो भी बहुत अमेजिंग था। इट वाज एन एक्सीलेंट। वी आर रियली थैंकफुल टू इंडियन आर्मी जो ये बार बार हमारी इस पाटन एरिया में इनिशिएटिव्स करते हैं, तो वी आर रियली थैंकफुल। और आज इस इंडियन आर्मी ने यहाँ पे एक मेडिकल ये कैंप ऑर्गेनाइज किया था। इससे हमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिला है, यहाँ के लोकल्स को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिला है। हम दिल से इनका थैंक्स करते हैं। एक बार फिर से इन्होंने यहाँ पे ये कैंप ऑर्गेनाइज किया है और इन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पे ट्रीट किया, सब पेशेंट्स को बहुत अच्छे से केयर की, बहुत अच्छे से देखा। वंस अगेन हम इंडियन आर्मी का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इंडियन आर्मी की तरफ से यहाँ पे लॉन्च हुआ है, ये बहुत ही अच्छा हुआ है। इससे हम सबको फ़ायदा मिला है, खास करके जो यहाँ पे नौरी में लोकल्स है उनके लिए बहुत अच्छा हुआ है। ये सब आए, इन्होंने अपना चेकअप कराया यहाँ पे फ्री में। यहाँ पे चलिए, अब तक प्रोग्राम में आज मेरे साथ इतना ही। ज़ुहूर लौला भी को इजाज़त दीजिए इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। फ़ी अमान।